تو یہ الیکشن میرا الیکشن نہیں، یہ راجہ وحید کا الیکشن نہیں، یہ آپ کا الیکشن ہے۔ آپ نے سب نے مل جل کے لسٹوں پہ کام کر کے ایک ایک شخص کی محنت کرنی ہے، اور ووٹ جو ہے ہمیں ملے وہ اس تعداد میں ملے کہ دوبارہ آپ کے اگینسٹ کوئی الیکشن نہ لڑ سکے۔ میں جناب چودھری عبدالرؤف صاحب کا اور سردار طاہر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے گلبرگ کو نمائندگی دی اور راجہ وحید صاحب کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اپنی کابینہ میں منتخب کیا۔ الیکشن ہم انشاءاللہ جیتے ہوئے ہیں اللہ کی فضل سے، تو میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ڈیلر کمیونٹی کا جنہوں نے اس میٹنگ کو جلسے میں تبدیل کیا۔ جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے تعلق والے بندے ہیں، ان کا ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے کوشاں رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کہ ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرفداری کی، ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرفداری کی، تو علامت ہے میرے شہر میں خودداری کی۔ سکونی میں چین زندہ ہے، اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ آج یہ محفلیں، آج یہ مجلسیں بتاتی ہیں کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ آج یہ محفلیں بتاتی ہیں کون جیتا ہے کون۔ نے 2 گھنٹے کی شارٹ نوٹس پہ جتنے دوست آئے ہیں آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آج صبح 10 بجے ہم نے یہ پلان ترتیب دیا تھا، تو الحمدللہ یہ گیدرنگ جو نظر آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ باقی سردار صاحب، میں اپنی اور اپنی ایسوسییشن کی طرف سے مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم ہر دائمیں دھرنے سکنے آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ بیک پہ نہیں ہوں گے، فرنٹ پہ ہوں گے۔ دوستوں بتاتا چلوں کہ پہلے چودھری عبدالرؤف صاحب نے جو یہ ایسوسییشن ہے، گمنام ایسوسییشن تھی 2016 سے 2018 تک، ماشاءاللہ وہ لے کے اس کو چلے۔ اس کے بعد سردار طاہر صاحب نے 2018 سے 2022 تک ایف بی آر کا مسئلہ ہو، سی ڈی اے کا مسئلہ ہو، ماشاءاللہ یہ آدھی کال پہ مطلب اگر کہیں بیزی ہوں تو کال بیک کرتے ہیں، اور جب بھی ان کو کال کی ایف بی آر میں ہمارے گلبرگ کے بہت زیادہ ٹیکس لگے تھے۔ سردار صاحب میرے ساتھ مل کے انہوں نے ہمارے مرضی کے ٹیکس ہوئے، مگر جہاں تک بھی ہم نے ان کو کام کا، دن ہو رات ہو، یہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہے۔ تو دوست مجھے کہتے ہیں سردار صاحب کو کیوں ووٹ دینے ہیں؟ وہ اس لیے ووٹ دینے ہیں کہ سردار صاحب آدھی کال پہ بات سنتے ہیں اور کال بیک کرتے ہیں۔ سر میں اپنی اور گلبرگ کی تمام دوستوں کی وجہ سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 22 تاریخ کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ ایک رسمی کارروائی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ الیکشن ون کر چکے ہیں۔ اور ایک دفعہ آخر میں پھر دوستوں کا جو یہاں ہمارے گلبرگ کے دوست آئے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ گلبرگ کے لیے ایک بہترین پہلی دفعہ جو ہے وہ ہم نے ایک ایڈیشنل سیکٹری کی سیٹ لی ہے۔ الحمدللہ تمام جتنے بھی اس وقت یہاں میرے پارٹنرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں لفظ پارٹنر اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہم ایک ہی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں اپنی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی جانب سے گلبرگ میں جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ ڈیلرز ہیں ان کی وساطت سے جناب سردار طاہر صاحب کو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسییشن کی نمائندگی کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی بھائی رجسٹرڈ ڈیلر ہیں اور جو اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ ہماری کمیونٹی ہے، انشاءاللہ ہم پورے زور و شور کے ساتھ الیکشن میں آئیں گے اور الیکشن لڑ کے دکھائیں گے۔ بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ بات ہے گلبرگ کے لیے۔ ایک شعر راجہ وحید صاحب کی نظر کرتا ہوں جی۔ شاعر مشرق کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر
मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। तो मैं अब दावत खिताब दूंगा। बड़ा प्यारा चेहरा इस्लामाबाद का, बड़ा खूबसूरत उन्होंने 4 साल सर्व किया बहैसियत जन्नत सेक्रेटरी, और इस्लामाबाद की रियल्टर्स बरादरी ने एक दफ़ा फिर उनको मौका देगी इंशाअल्लाह 22 दिसंबर को कि वो अपनी बरादरी की भरपूर खिदमत करें। उम्मीदवार बराए जन्नत सेक्रेटरी जनाब चौधरी जाहिद रफीक। वाहिद जनरल सेक्रेटरी हूँ जिसके 2 सदर हैं, इन्हीं 2 सदूर के दरमियान अपना काम जारी रखेंगे, अपने रियल्टर्स की खिदमत जारी रखेंगे, और गुलबर्ग से जो रिश्ता नाता है मज़ीद मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह मैं अपने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के साथ आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। वो शायर कहता है ना कि जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम है मोहब्बत सो हम बांटेंगे। तो हमने ये पैगाम दे दिया कि सब एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह इकट्ठे हो सकते हैं। तो मैं अब दावत खिताब दूंगा इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के साबिक सदर, रियल स्टेट वेलफेयर ग्रुप के सरबराह, और ये मुझे अमूमन कहते हैं कि यार मेरा एक ही तारुफ कराया करें, वो कराया करें कि फेयर डील मार्केटिंग के चेयरमैन। बस कहते मेरा कारोबारी तारुफ कराया करें। मैं कह जी वो तो फिर मार्केटिंग हो जाएगी आपकी, उसके पैसे आपको हमें देने पड़ेंगे। तो वो अभी माशाल्लाह इन्होंने जो इकदाम किया है, जो कदम उठाया है रियल्टर्स के लिए, इन्होंने एजीएम में एक बात की थी कि रियल्टर्स के लिए अगर चौधरी रऊफ को हर कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देगा, और उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया कि उन्होंने रियल्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कि आए और हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं ताकि एक अच्छा पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाए। तो चौधरी रऊफ साहब आपकी नजर एक शेर, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। ओवर टू चौधरी अब्दुल रऊफ। ग्रुप जो है उन्होंने बड़ी खिदमत की। खिदमत किनकी की? अपने भाइयों की और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर 2 ग्रुप आपस में इलेक्शन लड़के आपकी खिदमत कर सकते हैं तो इकट्ठे होकर भी आपकी खिदमत कर सकते हैं। हमने अपनी कम्युनिटी के लिए अपने आप को इकट्ठा किया है। मैं आपको बताऊं, मैं सरदार ताहिर साहब को बहुत ज़्यादा सराहता हूं, सिर्फ इसलिए कि अपनी फैमिली का टाइम ये आप और हमारे लिए वक्फ करते हैं, अपने कारोबार का टाइम ये आप और हमारे लिए वक्फ करते हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए वक्फ करते हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं सरदार ताहिर साहब को हमेशा कहता हूँ कि आपने कभी भी इस्लामाबाद से इसके सिले की तवक्को नहीं करनी। इसका सिला आपको इंशाल्लाह इस जहान में भी मिलेगा और अगले जहान में भी मिलेगा, क्योंकि वेलफेयर जो है ये सदका जारिया के तौर पर की जानी चाहिए। तो सरदार साहब ने हमेशा इस काज के साथ आपकी खिदमत की है कि जिससे इनकी दुनिया और आखिरत बने। तो मैं आज सरदार साहब को बताता हूँ कि जिस तरीके से आपने शबो रोज़ मेहनत की है उसकी वजह से आज रियल स्टेट वेलफेयर ग्रुप के मैं सरबराह होने की हैसियत से आपकी कैंपेन में आपके शाना बिशाना हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें दुनियादारी के मकासद हों, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन की मजबूती का जो काज आप लेकर चले हैं उसके लिए मैं आपके शाना बिशाना हूँ। मैं गुलबर्ग को जिस तरीके से प्यार करता हूँ उसकी सिर्फ एक ही मिसाल है कि जिस तरीके से अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात में से बनाया है, ये जब अपना फैसला करते हैं तो ये इकट्ठे होकर चलते हैं और आपस में जो सलाह और मशवरा होता है उसी में खैर बरकत होती है। तो यहाँ पर इनके सरपरस्त आला मौजूद हैं, इनके प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं और ये सारे वोटर्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है कि गुलबर्ग ने इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर और एक पैनल पर वोट दिया है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पूरे के पूरे वोट आपको मिलेंगे। हम रियल्टर का मुकदमा भी लड़ते हैं, हम बिल्डर का मुकदमा भी लड़ते हैं और हम एंड यूज़र का मुकदमा भी लड़ते हैं। 22 तारीख के बाद आप लोगों ने अगर हमें मुंतखब किया और मुझे यकीन है कि आप हमें एक मौका देंगे और जब आप हमें मौका देंगे तो हम इंशाल्लाह हम खैर ख्वाह हैं अपनी रियल स्टेट कम्युनिटी के,
हम डेवलपर के भी खैर खा हैं जहाँ से हमारा रिस्क वाबस्ता है, हम बिल्डर के भी खैर खा हैं जो कि इतनी मुश्किल हालात में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और हम वो एंड यूज़र्स जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो हम उनके भी दादरसी करने के लिए हमेशा अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते रहेंगे आपकी एसोसिएशन के साथ मिलकर। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे हाथ मजबूत करें, मेंबरशिप की कमेटी बनेगी, मुख्तलिफ कमेटीज़ बनेंगी। राजा वहीद साहब अब आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त और तवाना आवाज़ हैं जो इस्लामाबाद की मेन कैबिनेट के अंदर मौजूद होगी। ये हमारे साथ मौजूद होंगे हर इशू को एड्रेस करने के लिए और हर इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए इंशाल्लाह हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये हमारे साथ मिल के आपकी आवाज़ हम तक पहुँचाएँगे। आपके पीछे न सिर्फ इस्लामाबाद की पूरी कम्युनिटी खड़ी होगी, रियल स्टेट कम्युनिटी खड़ी होगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सदारत भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पास है। तो हम आपके पास इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान की जो रियल स्टेट कम्युनिटी है वो भी हर छोटा इशू हो या बड़ा इशू हो वो आपके साथ आपकी बैक पे खड़ी होगी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब नजीब मलिक साहब का, जनाब चौधरी रऊफ साहब का, मलिक साहब का, मलिक नवीद साहब का, मेजर रियाज साहब का। मेजर रियाज साहब से मेरे बहुत पुराने मुरासिम हैं। इसी तरह बाकी ये वासिर दाऊद साहब हैं, फाउंडर मेंबर हैं हमारे। सरदार अमजद साहब हैं, ये मेरे भाई हैं, ये भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी तमाम अहबाब भी। राय साहब इंशाल्लाह हम आपसे सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपके साथ शेयर करें। मिलजुल के हम इस कम्युनिटी की खिदमत करेंगे। आपने क़यादत चुनते वक्त कभी भी धड़ेबंदी, रिश्तेदारी या ताल्लुक को नहीं देखना। हमेशा आपने देखना है कि जो मेरा कैंडिडेट है क्या वो एलिजिबल है, क्या वो इस काबिल है कि ये मेरी रिप्रेजेंटेशन कर सके उन तमाम फोरम्स के ऊपर जो आपसे मुतल्लिका हैं। अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं और मेरी टीम इस काबिल है कि वो आपके मसाइल के हल के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं जो हमने पिछले 4 साल में किरदार अदा किया, तो आप मुझे और मेरी टीम को मुंतखब कीजिएगा। और अगर आप ये समझें कि ये इस काबिल नहीं है तो आप बेशक वोट न दीजिएगा, लेकिन सिर्फ ताल्लुक की वजह से, धड़े की वजह से या किसी रिश्तेदारी की वजह से आप अपनी रिप्रेजेंटेशन किसी ऐसे शख्स को ना दीजिएगा जो आपकी तवक्कुआत के ऊपर कल पूरा ना हो सके। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़, माल, जान और औलाद में बरकत अता फरमाए। और इसके अलावा एक गुजारिश ये है कि ये जो 100 रियल स्टेट एजेंट्स यहाँ हमारे पास मौजूद हैं गुलबर्ग में, इनका ताल्लुक हर जगह पे है। आपका ताल्लुक गौरी टाउन में भी है, आपके ताल्लुक इस्लामाबाद के हर सेक्टर के साथ भी है। तो ये इलेक्शन मेरा इलेक्शन नहीं, ये राजा वहीद का इलेक्शन नहीं, ये आपका इलेक्शन है। आपने सब ने मिलजुल के लिस्टों पे काम करके एक एक शख्स की मेहनत करनी है और वोट जो है हमें मिले वो इस तादाद में मिले कि दोबारा आपके अगेंस्ट कोई इलेक्शन न लड़ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में, जहां पर आज इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन इलेक्शन 2022 एंड 24 के हवाले से आज एक कार्नर मीटिंग का इनकाद किया गया, जो देखते ही देखते जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। नाज़रीन जानते हैं इस मीटिंग का मकसद क्या है, क्या मंशूर है, आइए जानते हैं। ये पुराने लोग हैं, ये अपने साथ नए लोगों को एंगेज करें, उनसे काम लें और उनको काम सिखाएं ताकि वो मार्केट में एक जो हमारे माशरे में जॉब्स की कमी का इशू है वो भी रिज़ॉल्व हो और हमारे यहाँ कल्चर बने एंटरप्रेन्योरशिप का। पर के लोग जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जो नहीं आ सकते इस मीटिंग के अंदर, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, गुलबर्ग में ना इस वक्त 107 वोट रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी यहाँ मौजूद थी। और इस्लामाबाद में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खाली गुलबर्ग में नहीं, हम इस्लामाबाद में भी बेशुमार तंजीमों के साथ काम करते हैं और बेशुमार वोटर इस्लामाबाद से, साइड सोसाइटियों से भी यहाँ हमारे दोस्त मौजूद थे और सब ने सरदार ताहिर साहब की हमायत का जो ऐलान किया है
तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और मैं गुलबर्ग के तमाम दोस्तों की नज़र ये पैगाम है मेरा कि जो अभी तक इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के मेंबर नहीं बन पाए, वो 22 दिसंबर के इलेक्शन के बाद ज़रूर इस एसोसिएशन के मेंबर बने। आज की इस मीटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा बाबर हुसैन है जी। मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन का। मैं समझता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आज मीटिंग तो एक रस्मी करवाई थी, इलेक्शन हम इंशाल्लाह जीते हुए हैं अल्लाह की फ़ज़ल से। तो मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डीलर कम्युनिटी का, जिन्होंने इस मीटिंग को जलसे में तब्दील किया और हमें इज़्ज़त बख्शी। हम इनके मशकूर हैं। हम फर्दर जिस तरह मलिक नजीब साहब की क़यादत में, हमारे प्रेसिडेंट हैं, भाई हैं हमारे बड़े, हम उनकी क़यादत में जिस तरह लोगों के जहाँ जहाँ किसी को कोई मसला हुआ, हमने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखी, जिस काबिल थे हमने मुखलस होकर उन लोगों की हेल्प की। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी तरह अपने दोस्तों की खिदमत करते रहेंगे, चूँकि हमने ख़ुद ग्रास रूट लेवल से अपने काम को शुरू किया था और हमें इस चीज़ का एहसास है कि जब कोई बंदा किसी मुश्किल में फंसता है तो उसे कितनी तकलीफ़ और कितनी परेशानी होती है। वालेकुम जी, मेरा नाम फैज़ान शौकत है और मैं प्रो 369 को होल्ड करता हूँ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो है मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी एसोसिएशन के साथ भरपूर तरीके से खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ताला सरदार ताहिर की सपोर्ट जो है उसके साथ हूँ बिल्कुल। और अपनी एसोसिएशन को फॉलो करते हुए उनके जो भी इक़दामात होंगे या फ़ैसले होंगे उसको फॉलो करूँगा इंशाल्लाह। और जैसे कि मलिक नजीब साहब ने पहले बात की कि उनको किसी भी किस्म की, अभी तो जस्ट एक आज का दिन हो या 22 दिसंबर हो, तो हमारे लिए वो प्रेसिडेंट हैं और इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से 22 दिसंबर को भी वो विन करेंगे। मैं ज़ामिन अब्बास, गुलबर्ग एम्पायर मेरा ऑफिस है। ये आज का जो इवेंट है ये राजा वहीद साहब जो नॉमिनेट हुए हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए, इसका सारा सेहरा जो है हमारे सरपरस्त मेजर रियाज साहब को जाता है, हमारे सदर जो है मलिक नजीब साहब को, और हमारे सेक्रेटरी जो है नवीद साहब को जाता है, और बाकी तमाम डीलर भाइयों को जो शार्ट नोटिस पे इस इवेंट में आए और इसको कामयाब किया। ये कॉर्नर मीटिंग नहीं बल्कि ये एक जलसा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, राजा वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद, जो कि आज मीटिंग जो ऑर्गेनाइज़ हुई है सारी राजा साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले राजा साहब मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या कैंपेन है आपकी, कितनी तैयारियाँ हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारी एक कॉर्नर मीटिंग थी जो कि आपके सामने एक जलसा में तब्दील हो गई। और पूरी हमारी जो कम्युनिटी है गुलबर्ग की, जितनी उसने भरपूर हमें यकीन दहानी कराई है कि वो वोट हमारे फाउंडर ग्रुप को दे रहे हैं। और इसके साथ हमारी जो इस्लामाबाद की रियल स्टेट कम्युनिटी है, जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हमें पूरी कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। हम भरपूर मैदान में उतरे हैं और अपना भरपूर डिफेंड करेंगे और हम अपने जितने भी हमारे वोटर्स हैं, हमारे तल्लक वाले बंदे हैं, उनका हम हर मसले के हल के लिए कोशां रहेंगे और इंशाल्लाह हम शाना बिशाना अपने अवाम के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा वहीद साहब, आप लोगों का मंशूर क्या है? देखें जी, हमारा मंशूर ये फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप जो हमारा है, हमारा मंशूर ये है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट हैं, एंड यूज़र हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी प्रॉब्लम ना हो। और जब भी इन्हें कोई मसला होगा इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े होंगे, इनसे जो दरपेश मसाइल होंगे हम उनको बखूबी हल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, ये इलेक्शन 22 तारीख को है, देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन मेहनत जारी है। इसी के साथ अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अगेन मुलाकात होती है एक नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।